Good morning to all students who are listening to me. All of you know that we are all over the world is suffering from a very new disease, COVID-19. So that's why all the educational institute including Kendriya Vidyalaya Sangathan is practicing as a online class teaching, and in this regard this is my second PPT audio, which is sixth chapter of our 12th book, Fundamental of Human Geography. In previous PPT, we discussed what is economic activity, various types of activities, and major characteristics of manufacturing industries. In this PPT audio, today we will discuss the factors affecting the location of the industries. All of you know that the present day is the industrialization day in the world. A developed country or developing countries is their economy based on industries, such as the growing countries like India and China are continuously increasing in manufacturing industry. So that's why today we discuss about the manufacturing industry location factors. First of all, you know that a person who want to settle industry, what is the main motto of that person? The main motto of that person is to get maximum profit. कोई भी व्यक्ति जो किसी भी इंडस्ट्री को लगाना चाहता है, उसका जो मुख्य मकसद होता है वो देश सेवा या जन सेवा, ये सब बाद में, सबसे पहले उसका मुख्य मकसद होता है कि वह अधिकतम लाभ की प्राप्ति करे। इसीलिए वो कहीं फैक्ट्री लगाता है या इंडस्ट्री को स्थापित करता है। अब किसी भी जगह देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को यदि लगाना हमारे को होगा, उसके लिए कई चीज़ देखी जाती है। ये डिपेंड करता है कि वो इंडस्ट्री किस नेचर की है, उसके अंदर रॉ मटेरियल किस काम का है, उसके द्वारा जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसकी नेचर क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होता है, किसी एक फैक्टर्स को देख के इंडस्ट्री की लोकेशन नहीं की जा सकती है, और उन सब में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करना होता है ताकि कोई भी वस्तु यदि वो जो इंडस्ट्री बना रही है उसकी कॉस्ट मिनिमम आ सके। इसी के अंदर बेसिकली हम देखा जाए तो इंडस्ट्रीज़ जो है उनको जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको दो बिग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड सेकंड नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स most of the depends on the natural, and non-geographical factor is developed by the human beings या human nature. Geographical factors, there are various geographical factors such as raw material, power, labor, transport, cheap land and water, and market. There are major 6 geographical factors which influence the location of the industries. First of all, in geographical factor we discuss about the raw material. In previous PPT audio we read about the primary activities, and in this raw material for manufacturing industries we use raw material by the primary activities. For example, jute mill, which is located, most of the jute mill is located in India, West Bengal. Raw material is very necessary. For sugar industry, for the raw material of sugar industry is sugar cane, and maximum sugar cane producing state in India is Uttar Pradesh. Cotton mills would be located near the cotton growing areas. It means black soil areas. For example, Maharashtra and Gujarat have a very big concentration of cotton textile industries. Coal based industry, for example, in Indian
iron and steel factories, coal based industry, because coal get from Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh. So most of the industries in these states that is based on coal based industry. Another factors, that is power. All of you know, in the world there are some industries which used maximum electricity. For example, aluminium industry, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. ये जो 3 प्रकार के उद्योग हैं, इन उद्योग के अंदर सबसे ज़्यादा जो लगाया जाता है, सबसे ज़्यादा खर्चा जिस बात का आता है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी का, इट मीन्स पावर का. तो इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है जहाँ पर सस्ती विद्युत मिलती हो, ताकि इनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट निकल रहा है उसकी कॉस्ट कम से कम हो सके. जिस प्रकार भारत के अंदर जैसे फर्टिलाइज़र प्लांट एक भाखड़ा नांगल जो परियोजना है उसके पास ही लगाया गया है, क्योंकि वहाँ पर सस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट से मिल जाती है. उसी प्रकार भारत के अंदर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कोरबा के अंदर लगाई गई है, और कोरबा के पास के इलाकों से जो कोल प्राप्त होता है उससे वहाँ पर सस्ती इलेक्ट्रिसिटी उनको मिल जाती है. थर्ड फैक्टर है लेबर. देखिए, इंडस्ट्री के अंदर 100 से लेके 1000 जो पर्सन है, जो लेबर है, वो उसके अंदर वर्क करते हैं. और वो लेबर जो है, देखिए, तभी ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी जब चीप लेबर अवेलेबल हो, यानी सस्ता श्रम उपलब्ध हो. इंडिया और चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनने का सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर जो लेबर है वो सस्ती मात्रा के अंदर मिल जाती है. और यही कारण है कि जो विश्व की अधिकांश जो इंडस्ट्रीज़ है वो इंडिया और चाइना की तरफ एस्टेब्लिश हो रही है. लेबर 2 प्रकार की होती है, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर. ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट फैक्टर इज ट्रांसपोर्ट, इट मीन्स यातायात. ट्रांसपोर्ट यातायात जो है वो हम जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, जो वेंस होती है, जो कोशिकाएं होती है, धमनियाँ होती है, उनके माध्यम से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसी प्रकार कोई भी यदि नेशन है, राष्ट्र है, उस राष्ट्र के अंदर यदि आर्थिक धमनी जो कहेंगे वो उसकी जो भी रोड या जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, रेलवे फैसिलिटीज़ है, उन पे डिपेंड्स है. क्योंकि आपको इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल लाना और रॉ मटेरियल से बने हुए प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना या उसका एक्सपोर्ट करना, वो ट्रांसपोर्ट से ही पॉसिबल है, अन्य किसी चीज़ से पॉसिबल नहीं है. इसलिए जब तक अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होगी तब तक इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी. और यही कारण है कि ये यदि हम पिछले कुछ 2 डिकेड से यदि देखें तो भारत के अंदर रोडों के अंदर बेहतर काम किया गया है. और इसके अंदर सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के अंदर भारत के अंदर गोल्डन क्वाड्रिलेटर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर लगाया गया, ताकि ट्रांसपोर्ट जल्दी से एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव हो सके. इसके बाद के अंदर नेक्स्ट जो फैक्टर्स है, चीप लैंड, यानी सस्ती ज़मीन. देखिए, कहीं पे भी यदि बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री लगाना है, आयरन स्टील इंडस्ट्री लगाना है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री लगाना है, उनके लिए कोई छोटी मोटी जगह नहीं चाहिए. उनके लिए काफ़ी मात्रा में ज़मीन की आवश्यकता होती है. ए वेरी बिग साइज ऑफ लैंड उनके लिए आवश्यक होता है. और इसके अंदर वो चीज़ शहर के पास बहुत महंगी है, इसलिए उसको अधिकांशतः ऐसी लैंड सरकार जो होती है वो अवेलेबल कराती है, और बाहर के क्षेत्रों के अंदर ऐसी लैंड अवेलेबल कराई जाती है जो कि जिसका कि एग्रीकल्चर में कम यूज़ आ रहा हो या वो बैरन लैंड हो. तो इस प्रकार अधिकांश इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए जो लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो मोस्ट ऑफ द जो लैंड होती है वो फ्री या बहुत ही सस्ती रेट पर उनको उपलब्ध कराई जाती है. अगला फैक्टर्स जो जोग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर है, लास्ट फैक्टर्स है, वो कहीं ना कहीं नॉन जोग्राफिकल से भी कहीं संबंधित है, वो है मार्केट. फाइनली जो आप प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री बनाया है वो इंडस्ट्री के अंदर तब तक ही प्रॉफिट देगा जब वो मार्केट के अंदर चला जाए. और मार्केट जितना ज़्यादा पास होगा, स्वाभाविक सी बात है
कि उतना ही जल्दी वो जो सामान है उसकी सेलिंग होगी। और कई इंडस्ट्रीज़ तो ऐसी होती है जो मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री होती है। मार्केट बेस्ड का मतलब जिनको मार्केट के पास ही लगाना होता है, इट मीन्स जिनके अंदर जो भी प्रोडक्ट बनना है वो जल्दी ख़राब होने की संभावना है। जैसे डेयरी इंडस्ट्रीज़ है, ये मार्केट आधारित इंडस्ट्रीज़ है। बेकरीज इंडस्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि इनके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो सर्वसुलभ उपलब्ध होता है। यदि हम बात करें, ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की जो इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट 95% वाटर होता है जो कि हर जगह अवेलेबल होता है। तो इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ को मार्केट में लगाना ज़्यादा आसान रहता है। दूसरी बात हम करें नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स, जो कि कहीं ना कहीं मानव से संबंधित है। उसके अंदर सबसे पहले आता है कैपिटल। किसी भी इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। यदि कंटेम्प्रेरी यदि पीरियड के अंदर देखें, कभी भी किसी भी इंडस्ट्री की यदि स्थापना की बात करें तो ये हम बात 1000 करोड़ रुपए कम से कम किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए चाहिए। तो कैपिटल यदि होगी तभी आप इंडस्ट्री को लगा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में यदि दूसरी हम बात करें कैपिटल के बाद, इंडस्ट्रियल एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो भी इंडस्ट्री लोकेशन के अंदर उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद यदि हम बात करें तो भारत के अंदर जो स्टार्टिंग सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर और थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर जो आयरन स्टील या बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियाँ लगाई गई थी वो बेसिकली गवर्नमेंट ने लोकल स्ट्रक्चर को देख के लगाई गई थी। जैसे जहाँ पर रॉ मटेरियल उपलब्ध है या ट्राइबल्स जहाँ पर एरिया है, जहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनीज़ है, यानी जहाँ पर अमीरी गरीबी का अंतर ज़्यादा है, जो बैकवर्ड एरिया है और वहाँ पर इंडस्ट्री लगने की ज़्यादा संभावना है, तो वहाँ पर भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल प्लांट लगाए, जैसा दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, भिलाई। अगला जो फैक्टर्स है इसके अंदर वो आता है बैंकिंग फैसिलिटी। देखिए, इंडस्ट्री जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पर्सनस होंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर एक बैंकिंग फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है ताकि बैंक के माध्यम से जो फाइनेंस है उसका फ्लो हो सके। अगला है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए वहाँ के लिए राजनीतिक स्थिरता बहुत अनिवार्य होती है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है वो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा तय की जाती है। तो कोई भी व्यक्ति जो इंडस्ट्री लगाएगा वो चाहेगा उस कंट्री या उस स्टेट के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ताकि उसकी इंडस्ट्री को किसी प्रकार से कोई खतरा ना आए। क्योंकि यदि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है तो हो सकता है कोई ऐसी सरकार आ जाए जो उस इंडस्ट्री को कुछ पर्यावरण के मुद्दे लेके या अन्य कई कारण लेके हो सकता है उसको बंद करवाया जा सके। ऐसी स्थिति में उस बिजनेस पर्सनस के लिए या जो फैक्ट्री का जो मालिक है या इंडस्ट्री को जिसने स्थापित किया है उसको बहुत भारी भरकम नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हमने बात की, जोग्राफिकल फैक्टर्स और नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स। इसके अंदर फर्स्ट के अंदर जो रॉ मटेरियल था उसके अंदर मैंने कई चीज़ें बताना भूल गया था, उसके लिए मैं अभी थोड़ा डिटेल से बता दूं। वो कि इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का एक बड़ा पार्ट है जिसके अंदर वेबर की थ्योरी की हम बात करें या हूबर की थ्योरी की बात करें तो उसके बारे में थोड़ा मैं 2 मिनट के बारे में बता देना चाहता हूँ कि देखिए, यदि किसी भी जगह कोई व्यक्ति यदि इंडस्ट्री लगाएगा उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया। नेचर जो व्यक्ति है, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती है जिनके अंदर रॉ मटेरियल ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को, सच टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल एरियाज़ में लगाना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, तभी आपको वहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम आयरन स्टील की बात करें और सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, इन दोनों इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ के अंदर आता है, और जो रॉ मटेरियल है उसकी नेचर है वेट लॉस, यानी उसमें भार का ह्रास होता है। जैसे यदि 1 टन यदि स्टील हमारे को बनाना है उसके लिए कम से कम 5 टन आयरन और चाहिए, लगभग 4.5 टन कोयला चाहिए, और उसके अलावा 0.5 टन लाइम स्टोन, 0.5 टन डोलोमाइट, 0.5 टन मैग्नीज चाहिए। तो ये लगभग 12-13 टन का माल हो जाता है जिससे मात्र केवल 1 टन स्टील बनेगा। इस प्रकार की इंडस्ट्री जहाँ पर वेट लॉस रॉ मटेरियल है, इनको
रॉ मटेरियल बेस्ड एरिया में लगाना ही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यदि हम भारत की बात करें तो इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ को हम देख सकते हैं। दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है वो कोल बेस्ड लगाया गया है, बोकारो जो स्टील प्लांट है वो भी कोल बेस्ड लगाया गया है। उसी प्रकार भिलाई और राउरकेला जो स्टील प्लांट लगाए गए हैं वो आयरन बेस्ड रॉ मटेरियल को देख के लगाए गए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जैसे जो रॉ मटेरियल होता है वो दो प्रकार का है, दो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे आयरन स्टील के अंदर एक को आयरन है और दूसरा कोल है, तो दोनों चीज़ें एक स्थान पर मिलना बहुत मुश्किल है। और यदि नहीं है तो कई बार होता है इन दोनों के बीच वाले एरियाज़ के अंदर स्टील प्लांट लगा दिया जाता है। जैसे भारत के अंदर हम बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1907 के अंदर लगा हुआ टिस्को प्लांट, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको जमशेदजी टाटा ने साक्षी नामक स्थान पर लगाया गया था। ये जो इंडस्ट्रियल प्लांट है वो नॉर्थ की तरफ कोल फील्ड और साउथ की तरफ जो आयरन फील्ड है इन दोनों के बीच के अंदर लगाया गया है, यानी दोनों के बीच की दूरी है। जो कोल बेस्ड स्टील प्लांट है और आयरन बेस्ड स्टील प्लांट है इनका एक फ़ायदा और होता है कि जो प्लांट कोल बेस्ड है तो दूसरी जगह से वो आयरन और लेके आएगी और जाते वक्त वो उन प्लांटों के लिए क्या लेके चले जाएगी, कोयला लेके चली जाएगी। तो रेलवे के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट हुआ वो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जो भी जिस ट्रेन के माध्यम से आ रहा है, भारत के अंदर यही है कि जो बोकारो और दुर्गापुर के अंदर जो साउथ से जो ट्रेन आती है जो आयरन और लेके आती है, वो जब इधर से वापस जाती है, रिटर्न होती है, तो वो अपने साथ कोल लेके जाती है ताकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिनिमम रहे। तो ये इस प्रकार की रॉ मटेरियल बेस्ड है जो कि कहीं ना कहीं जो वेबर की जो न्यूनतम लागत सिद्धांत है, मिनिमम प्रोडक्ट जो थ्योरी है उससे मिलती है। दूसरी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है मार्केट बेस्ड इंडस्ट्रीज जिनको मार्केट में लगाना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बेवरेज इंडस्ट्रीज़ की बात की, उसी प्रकार कई जो इम्पोर्टेंट्स हैं चीज़ें हैं जो टूटने में ज़्यादा संभावना रहती है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, डायमंड्स की चीज़ें होती है, ग्लास की चीज़ें होती है, तो ऐसी चीज़ों को मार्केट के पास में लगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अंदर डेयरी इंडस्ट्रीज़ की भी शामिल होती है। उसी प्रकार जो मिनरल पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ है, रिफाइनरी जिसकी हम बात करें, रिफाइनरी को कहीं पे भी लगाया जा सकता है। और अधिकांशतः ये जो मिनरल ऑयल इंपोर्ट किया जाता है या जहाँ से भी आता है ये 100% कंज्यूमेबल है, यानी ये वेट लॉस नहीं है। इसलिए इसको कोस्टल एरियाज़ पे भी ये लगी हुई है, मार्केट बेस्ड पे भी ये लगी हुई है, और बहुत सी जगह ये रॉ मटेरियल बेस्ड एरिया के अंदर भी ये इंडस्ट्री लगी हुई है। आई होप you like this PPT audio. Thank you so much.